کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جس کا نام تھا گیرن پیرا والا۔ یہ نام شاید عجیب لگے، مگر اس کے پیچھے ایک پرانا قصہ تھا کہ جب بھی چاند گیرن لگتا، گاؤں کے مغربی جانب واقع قدیم مٹی کے ٹیلے پر ایک ہلکی سی چاندنی اترتی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ دروازہ کھلتا ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کبھی ایک بزرگ بابا چراغ شاہ قیام پذیر رہے تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کے رازوں کے امین تھے۔ یہ گاؤں دور تھا، راستے کچے، گھر کچے، مگر لوگوں کے دل صاف تھے۔ کھیت وسیع، دریا گہرا، پانی ٹھنڈا، ہوا میں پرانی مٹی کی خوشبو، مویشیوں کی گھنٹیوں کی آواز شام کے سناٹے میں عجیب سی تسلی دیتی۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا زین، ایک 21 سالہ نوجوان، نہ بہت باتونی نہ بہت چنچل۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ہمیشہ تجسس رہتا۔ لوگ کہتے تھے زین بدلوں کو پڑھ سکتا ہے، یعنی آسمان دیکھ کر اگلے 3-4 دن کا موسم بتا دیتا۔ یہ اس کی خود ساختہ صلاحیت نہیں، بلکہ بچپن سے اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو عام لوگوں میں نہ تھا۔ زین کے والدین دونوں ہی کئی سال پہلے دریا میں آنے والے طغیانی میں چل بسے تھے۔ تب سے زین اپنی نانی بی بی سائرہ کے پاس رہتا تھا، جو کمزور مگر مضبوط دل کی مالک تھی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام اور ان کی آنکھوں میں بے حد شفقت تھی۔ کیونکہ اسے رات کے وقت ایک عجیب عادت تھی، وہ اکثر چاند کو دیکھتے دیکھتے جیسے خاموشی میں کھو جاتا، بالکل ایسا جیسے وہ چاند سے کوئی بات سن رہا ہو یا شاید جواب دے رہا ہو۔ یہ بات گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو پسند نہ تھی۔ وہ کہتے رات میں زیادہ دیر تک چاند دیکھنا عقل کو ہلا دیتا ہے، مگر زین کو کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، جیسے ایک سرگوشی، ایک بلاوا، ایک سوال جو ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ اس رات گاؤں میں عجیب سا سکوت تھا، ہوا میں نمی، دور کہیں کتے کے بھونکنے کی دھیمی آواز اور دریا کی لہروں کا شور۔ زین اپنے گھر کے باہر چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نانی سو چکی تھی، آسمان پر بادل کم تھے، مگر چاند ادھورا تھا، جیسے ایک ٹکڑا غائب ہو۔ چاند کے کنارے مدھم تھے، کچھ سیاہی سی پھیلی تھی۔ زین نے پہلی ہی نظر میں محسوس کر لیا کہ آج چاند کو کچھ ہوا ہے، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ عام چاند نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ایک ٹھنڈی لہر دریا کی طرف سے آئی، ایسا لگا جیسے ہوا نے اپنا ہاتھ زین کے کندھے پر رکھا ہو۔ نمی بھرے اس جھونکے میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی نام اس کے کان میں پکار رہا ہو۔ زین، وہ چوکا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر ایک لمحہ گزرنے کے بعد ہوا نے دوبارہ سرگوشی کی، دریا دیکھ۔ زین کا دل زور سے دھڑکا، اس کے قدم خود بخود دریا کی طرف اٹھنے لگے۔ گاؤں کے امیر لوگ اور بڑے بوڑھے ہمیشہ منع کرتے کہ رات کو دریا کے قریب نہ جانا، وہاں پریاں ناچتی ہے، جن بھٹکتے ہیں، پانی میں ہاتھ ڈال کر کوئی تمہیں کھینچ لے جاتا ہے۔ مگر زین کو جیسے کسی نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ گھومتا ہوا خاموشی سے رات کے اس پہر دریا پار کی سمت چلتا گیا۔ چاند کی روشنی کم تھی، مگر دریا کنارے پہنچ کر اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ دریا کے پانی پر چاند کا عکس تھا، لیکن عکس میں چاند پورا تھا، آسمان پر آدھا مگر پانی میں پورا۔ زین ساکت رہ گیا، اور پھر اچانک پانی کا عکس ہلکا سا لرزا، اور چاند کے عکس سے ایک آواز آئی، بالکل دھیمی، گہری اور انسانی، زین، وقت آ گیا ہے۔ پانی ایک لمحے کے لیے نیلا ہوا، جیسے آسمان کا ٹکڑا دریا میں گر گیا ہو، اور اس کے بعد ہر چیز پھر نارمل۔ زین پیچھے ہٹ گیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف نہیں تھا، بس سوال تھے۔ وہ گھر لوٹ آیا، مگر ساری رات سو نہ سکا۔ اگلی صبح زین نے بی بی سائرہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلے تو چپ رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں جانتی تھی یہ دن آئے گا، مگر اتنی جلدی؟ زین حیران ہوا۔
नानी, आप जानती थी चांद मुझे क्यों बुलाता है? बीबी सायरा ने आह भरी। बेटा, तुम्हारी माँ आम औरत ना थी। वो बाबा चराग शाह के खानदान से थी, रात पढ़ने वालों के कबीले से। वो लोग आसमान के इशारे समझते थे। जब वो जिंदा थी, चांद अक्सर उससे बातें करता था। वो दरिया से भी पैगाम लेती थी। जैन का दिल जैसे थम गया। उसे पहली बार अपने माजी की धुंध में कोई रोशनी नजर आई। और तुम? नानी ने हल्के से उसके बालों पर हाथ रखा। तुमने ये सब विरसे में पाया है, मगर इसमें खैर भी है और खतरा भी। चांद तुम्हें कभी ऐसे नहीं बुलाता जब तक कोई बड़ी वजह ना हो। दरिया का अक्स किसी अजनबी को कभी पूरा चांद नहीं दिखाता। जैन कुछ होने वाला है। भारी पुराना राज जाग रहा है। जैन के गले में अल्फाज फंस गए। नानी, मुझे क्या करना होगा? बेटा, जब चांद दोबारा तुम्हें बुलाए, सहमना नहीं, उसका पैगाम सुन लेना, मगर वादा करो कि किसी पर अंधा एतबार नहीं करोगे। जैन ने सर झुकाकर वादा किया, मगर उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिन न सिर्फ उसकी किस्मत बदलने वाले थे, बल्कि पूरे गांव के लिए एक आजमाइश बनने वाले थे। चंद दिन बाद गांव में एक हादसा हुआ। एक नौजवान चरवाहा, जिसका नाम फराज था, दरख्त की जड़ के करीब बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने कहा, मैंने साया देखा था। वो दरख्त के तने से निकल रहा था, लंबा, बिल्कुल इंसान, मगर आंखें स्याह। वो मुझे देख रहा था। लोगों ने पहले मजाक समझा, फिर जब फराज का जिस्म बुखार से जलने लगा तो गांव में खौफ फैल गया। दादी सायरा ने जब सुना, वो लरस गई। ये तुरब का साया है क्या? जैन ने पूछा। बाबा चराग शाह के जमाने में भी ऐसा हुआ था। तुरब कोई चीज नहीं, ये आदमी के दिल के अंदर के गंद से बनता है। जहां बहुत ज्यादा लालच, झूठ, हसद या बद्दुआ जमी हो, वहां तुरब पैदा होता है। ये साया नीस नहीं होता। ये किसी के अंदर या किसी जगह बहुत अरसे से जमे हुए बुरे इल्म या बुरे जख्म की अलामत होता है। जैन, ये गांव खतरे में है। इसी रात फिर से चांद अधूरा था और हवा की ठंडक बढ़ गई थी। जैन घर से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि हवा उसके गिर्द चक्कर की सूरत में घूम रही है। जैन, फिर वही आवाज, मगर इस बार ज्यादा वाज़े। टीले पर आओ, जहां बाबा चराग शाह सोए हैं। जैन का दिल गिरहन गया। नानी की नसीहत याद आई, अंधा एतबार नहीं करना। मगर यह आवाज किसी दुश्मन की ना लगती थी। वो टीले की समत चल पड़ा। टीला वीरान था, घास लंबी, पत्थरों पर काई और एक कच्चा सा मजार जिस पर हल्की चांदनी पड़ रही थी। जैसे ही जैन करीब हुआ, मट्टी में लर्जश हुई, बिल्कुल सांस लेने जैसी। और फिर मजार के पैंदे में से हल्का सा नीला नूर निकला। नूर धीरे धीरे एक शक्ल में ढलने लगा। एक धुंधली, शफाफ नमा इंसानी सूरत जो 2 फुट जमीन के ऊपर हवा में मुअल्लक थी। जैन का दिल दहल गया, मगर वो भागा नहीं। वो शक्ल बोली, जैन, मैं चराग शाह हूं, तुम्हारे नाना का पीर और तुम्हारी माँ का उस्ताद। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी रगों में रात का इल्म है और वक्त कम है। गांव पर तुरब का साया छा रहा है। जैन ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। चिराग शाह की रूह ने सर झुकाकर कहा, जानते हो मगर भूल गए हो। तुम्हारे अंदर वो इल्म मौजूद है, बसे जगाने की जरूरत है। मगर याद रखो, इल्म रोशनी और जिम्मेदारी दोनों होता है, और तुरब वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसकी असल ना मिले। असल? हाँ, साया किसी एक आदमी के अंदर छुपा हुआ है। कोई उस गांव में जो बहुत अरसे से अपने दिल में जहर पाले बैठा है। तुरब उस शख्स के गुनाह का अक्स है। जब तक वो दिल साफ ना करे या उसका हिसाब ना लिया जाए, साया खत्म नहीं होगा। और अगर वो साया पड़ गया तो गांव में खून गिरेगा। जैन ने लरस कर पूछा, वो शख्स कौन है? चराग शाह की रूह ने आसमान की सिमत देखा।
ये तुम्हें खुद तलाश करना होगा। लेकिन खबरदार, जिसे लोग सबसे नेक समझते हैं, कभी कभी जहर उसके अंदर होता है, और जिसे सब बुरा कहते हैं, वो शायद सिर्फ मजलूम होता है। मुझे कहाँ से आगाज करना चाहिए? जैन ने इल्तिजा की। चिराग शाह की रूह ने जवाब दिया, दरिया की रातों को देखो, चांद के इशारे सुनो, और सबसे बढ़कर अपने दिल की नेकी को कायम रखो, क्योंकि तुरप के खिलाफ लड़ाई तलवार से नहीं, जमीर से जीती जाती है। नूर अचानक बिखर गया, हवा में खामोशी फैल गई। जैन एक गहरी सांस लेकर मजाल से नीचे उतर आया। उसे मालूम था कि यह सफर आसान नहीं होगा, और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन गांव में एक और मसला खड़ा हो गया। मौलवी इसहाक, गांव के सबसे इज्जतदार मजहबी उस्ताद, अपने घर के बाहर चीख चीख कर सबको बुला रहे थे। मेरे आंगन में किसी ने काला लच्छा फेंका है, ये आसेब की निशानी है, कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। गांव वाले भागते हुए जमा हुए, मगर जब सबने वो लच्छा देखा तो हैरत में पड़ गए। वो काला नहीं, सफेद था, बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद। गांव में सफेद लच्छा कोई नहीं रखता था, ये किसी खास चीज का इशारा था। बीबी सायरा ने उसे देखते ही कहा, ये लगता है किसी के दिल की थकन है, किसी की पुरानी बद्दुआ, या कोई राज जो जमीन पर जाहिर हो गया है। कुछ लोग कहने लगे, मौलवी साहब के घर क्यों आया? क्या उनके दिल में भी कुछ छुपा हुआ है? मौलवी इसहाक बौखला गए। मैंने जिंदगी में कभी बुराई नहीं की, मैं गांव का सबसे नेक आदमी हूं। मगर जैन ने उनकी आंखों में एक अजीब सी मैल देखी, जैसे कोई बात छुपाई गई हो, कोई बोझ जो बरसों से दिल में दबा हो। उसी रात चांद फिर अधूरा था। जैन जानता था कि अब उसे अगला कदम उठाना होगा। चांद की रोशनी कम मगर अजीब थी, ऐसी जैसे हकीकत के किनारे पर लरसती हो। जैन दरिया किनारे बैठ गया, पानी को हाथ लगाया और फिर आसमान की तरफ देखते हुए दिल में कहा, अगर कोई इशारा है बता दो, मैं तैयार हूं। अचानक एक लहर दरिया में उठी, पानी नीला हुआ और उसमें एक मंजर बनता चला गया, बिल्कुल फिल्म की तरह। मंजर में मौलवी इसहाक दिखाई दिए, अकेले रात के वक्त दरख्तों के बीच बैठे रो रहे थे। उनके हाथ में एक तावीज था और वो बार बार कह रहे थे, मुझे मुआफ कर दे, मैंने तेरा हक छीना नहीं था, मैंने बस अपनी इज्जत बचाई थी। पानी का मंजर धुंधला गया, मगर जैन को अंदाजा हो गया, गांव में जो सबसे ज्यादा नेक समझा जाता था, वही शायद एक पुराने गुनाह के बोझ में दबा हुआ था, उस बोझ से खुराक लेता था। जैन ने खामोशी से जांच शुरू की, लोगों से बात की कहानियां इकट्ठा की। आखिर एक बहुत बूढ़ी औरत खदीजा बीबी ने हकीकत बताई। जब मौलवी इसहाक जवान थे, उनके पास एक यतीम लड़की रहने आई थी, नाम था नाहीद। बड़ी नेक, बड़ी खूबसूरत, लोग उसकी तारीफ करते थे। मौलवी साहब की बीवी को वो पसंद ना थी। घरेलू झगड़ों में बीवी ने इल्जाम लगा दिया कि इसहाक और नाहीद के दरमियान कुछ है। हालांकि हकीकत कुछ न थी, मगर बात मशहूर हो गई। लोगों ने नाहीद को बदनाम कर दिया और मौलवी इसहाक ने उसे बचाने के बजाय अपनी इज्जत बचाने में खामोशी इख्तियार की। बेटी बेइज्जती से तंग आकर गांव छोड़ गई। इस रात जब चांद मध्यम हुआ, गांव के ऐन दरमियान में एक भयानक साया जाहिर हुआ। ये वही तुरप था, लंबा, धुआंधार, मगर इंसानी शक्ल का। आंखें दो खाली गड्ढे और मुंह के बजाय एक सियाह रोशनी। लोग चीख कर घरों में भागे, बच्चे रोने लगे। मौलवी इसहाक खौफ से कांप रहे थे। दुरप ने इनकी तरफ इशारा किया, जैसे जानता हो कि वो इसका मरकज है। बीबी सायरा ने जैन का हाथ पकड़ा, बेटा अब वक्त है, अगर तुम ना रोके तो आज रात कोई मर जाएगा। जैन आगे बढ़ा, तुरप ने उस पर अपनी सियाह रोशनी फेंकी, जैसे उसे अंदर से खींचकर खाली करना चाहता हो, मगर जैन खड़ा रहा। उसे अचानक अपनी माँ के वो अल्फाज याद आए जो उसे बचपन में सुनाई देता था, रात से डरना नहीं बेटा,
रात सिर्फ वो दिखाती है जो दिन छुपा लेता है। सारी हिम्मत जमा की और तुरब से कहा, मैं जानता हूं तुम इस गांव के नहीं, तुम एक दिल के अंदर के बोझ हो, और आज तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। तुरब की चीख ऐसी थी कि मट्टी लरज उठी। जैन ने मौलवी इसहाक का हाथ पकड़ा और उन्हें आगे खींचा। अपना गुनाह कबूल करो, अपनी खामोशी का एतराफ करो, यही वाहिद तरीका है तुरब को खत्म करने का। मौलवी इसहाक चीखे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मगर तक गांव के बीचों बीच एक औरत की धुंधली शक्ल जाहिर हुई। वो बर्फ की तरह सफेद रोशनी में लिपटी हुई थी। नाहीद की रूह। उसकी आवाज नरम मगर धीमी थी। इसहाक, तुमने मेरा बुरा नहीं किया था, तुमने सिर्फ मेरा साथ नहीं दिया था। पता है सबसे बड़ा जुल्म क्या होता है? हक का साथ ना देना। और आज तुम्हारी खामोशी ने ही तरब को जन्म दिया है। अपने दिल को आजाद कर दो, वरना ये साया सब कुछ निगल जाएगा। मौलवी इसहाक की टांगें कांपने लगी। वो जमीन पर बैठ गए और पहली बार रोए, सच्ची तड़पती हुई टूटी हुई रोती। मैंने गलत किया, मैंने तुम्हें बचा सकता था, मैंने डर से खामोशी इख्तियार की, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नाहीद की रूह की आंखों में चांदनी भर गई। तरब ने एक आखिरी चीख मारी, ऐसी कि जैसे उसका वजूद चलता जा रहा हो। उसका जिस्म बिखरने लगा, धुएं में तब्दील हुआ, रोशनी में बदल कर आसमान की सिमत उठ गया। चांद की रोशनी तेज हो गई और गांव की फजा हल्की महसूस होने लगी। सुबह गांव एक नए सुकून में जागा। मौलवी इसहाक अब टूट चुके थे, मगर पहली बार उनकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि सच्चाई थी। वो नाहीद के लिए एक छोटा सा मजार बनवाने लगे। हर रोज उसके सामने बैठकर दुआ करते और लोगों को भी सिखाने लगे कि नेकी सिर्फ नाम की नहीं, सच्चाई के साथ खड़े होने में होती है। बीबी सायरा ने जैन के सर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने गांव को बचा लिया, ये इल्म अब तुम्हारी अमानत है, लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ तब जब कोई बहुत बड़ा जुल्म सामने हो, वरना इल्म भी इंसान को मगरूर बना देता है। जैन ने मुस्कुराकर कहा, नानी, मुझे इल्म नहीं, मुझे सच्चाई चाहिए, बस इतना काफी है। उस रात चांद पूरा था और पहली बार उसमें कोई अधूरापन ना था। जैन ने आसमान की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि चांद उससे कुछ कह रहा है। जिसे दिल साफ हो, उसके लिए रात कभी अंधेरी नहीं होती। और ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैन की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर चलने वाली थी। मगर गिरहन पीरा वाले गांव में पहली बार बरसों बाद डूबते चांद का राज बेनकाब हुआ था और साया हमेशा के लिए मिट चुका था।